We discussed the first part of this topic, which is refining the sketch, in which we basically discussed something called as break-in and breakaway points. So we discussed how we basically can find out the break-in and breakaway points, where we let's say define the breakaway point as the one which is in between the two poles, or the two poles on the real axis, the open loop poles, where the root locus actually leaves the real axis, okay, because it travels from the poles to the zeros. So when it travels from the poles, so it will obviously, if it has to go into the complex, the region, then it has to actually break away between the two poles. And generally, if we have finite zeros, then and they are on the, let's say, real axis, then it will have something called as break-in points, where the root locus will come back to the real axis and then finally end up at the zeros which are on the real axis, let's say in this case. So obviously, if we don't have anything if you have complex poles, open loop poles, and we have just can say we have the zeros which are on the real axis, then we will not have any breakaway point, but we will still have a break-in point. And if we don't have any zeros on the real axis, then we may have just the breakaway point, and we may not have any break-in points. All right. So I think that is clear. And we have seen that breakaway and break-in points actually generally are the ones where we have the maximum gain. So the root locus leaves the real axis. At this point, the gain associated is actually the maximum. So these are the definitions that we have just seen. And we have seen an example where we have seen that these were the open loop poles, and let's say the root locus starts from the poles and then it leaves the real axis, one from this side, one from that side, and then it comes back to the real axis, and it goes to the zeros. So this is known as the break-in point, and the point where it leaves the root locus is known as the breakaway point. Now, to exactly locate them, because we want to plot the root locus much clearly, we have seen that this point of the root locus where it starts is actually the minimum point of minimum gain. It's almost like k is equal to 0, so what we call as even open loop poles. So obviously on this whole real axis, as we increase the gain, only after increasing the gain to a particular level will this root locus actually move out. So that way we define that it's a point of maximum gain along the real axis in between the two poles. So that we know that we can find out k, and accordingly we can differentiate k with respect to that point. So we can easily find out this gain k. Similarly, we know that the root locus ends at zeros, and at zeros we have the infinity gain, the gain as infinity. So obviously, as the gain is increased, the root locus will move towards the zeros. So obviously, the point where the root locus comes and actually puts in itself into the real axis will be the point of minimum gain along this, in between the two zeros. So we can find out the minima here, or we get the maxima here, and accordingly these points can be identified exactly. So this is what we had defined last time. The gain must be maximum along the real axis, and the gain must be minimum for the break-in points. So we know that k was defined in this form. K is equal to -1 by GSHS, because it comes from nothing but the characteristics equation of the closed loop transfer function of a feedback system, where we have HS in the feedback, GS in the forward transfer function. And we assume that there is a point on the real axis which is like S is equal to sigma plus 0j. Here we see that since it's on the real axis, so that it has no imaginary component. All right. So then it can be substituted. This S is equal to sigma. We assume some point can be substituted here, and then we can find out the change in the gain with respect to the sigma, and obviously it will be 0. Will be the point of maxima or minima. So that's what we have actually defined. And we also at the last looked at this one of the methods whose mathematical basis we could not see basically, and it's not part of our syllabus also, but it is one of the theories which says that this is the let's say relation that these let's say the break-in and breakaway point will have. So 1 by sigma plus zi should be equal to 1 by sigma plus pi, summation of all these zeros and poles. So this relation
and this relation will give you the same values of sigma. So I'd give you one problem to discuss to try. This was it, that we have a system which is given in this form: K, G, S, H, S is capital K, S minus 3, S minus 5, S plus 1, S plus 2. And in fact, this is the one that we have just not plotted, because if I just see the zeros here, these are 3 and 5 as per this. 3 and 5 are the zeros. So here I have actually put up the same. Yes, 3 and 5 are the zeros. Poles are at -1 and -2. So -1 and -2. So this is this root locus actually, this problem. So what exactly are these points at which the root locus leaves? And what exactly is it's not at the center of the two, it can be anywhere. So what exactly is this point, and what exactly is this point? That I had actually asked you to do actually. So is there anyone who has actually tried this? Yes sir, सर किया था try. So what were the points? सर मुझे सिग्मा ए का आया 1.3 और सिग्मा के दो वैल्यूज आए 3.6 के अराउंड. और बताइए किसको, किसने इसको सॉल्व किया? Yes, anyone else? Yes, sir. Uh, So I maybe got specific. one answer 3.18 and the other one is -1.23. देखिए अगर हम इसको देखें यहाँ से तो लगभग हमें इसके अराउंड ही मिलना चाहिए, माइनस और -2 के बीच में मिलना चाहिए, और 3 और 5 के बीच में मिलना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज वन लेट्स से क्लू फॉर अस. एनीबॉडी एल्स? Yes sir. Can you tell us what is the answer that you got? So sigma 1 minus 1.42 and sigma 2 3.8. चलिए, सो आप लोग इसको ट्राई करेंगे. मैं आपको थोड़ा सा इसको ना, आई विल जस्ट मे बी गो थ्रू दिस थिंग. सो वी स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट दी लेट्स से poles and zeros. That is very simple, straightforward. Then we assume that there's a point at S which is equal to sigma plus 0j, which is nothing but sigma. We substitute it in this equation, which is nothing but the equation that we have just now talked about. So k of g of s should be equal to -1. So k of this same as what has been provided here. So this is an evaluation of this as a polynomial. Then I have substituted instead of s, I have substituted sigma. Then we can write k in terms of this, because we can do cross multiplication. So this will be like this. So you'll try it yourself because it's very straightforward. And we need to find out dk by d sigma. How do we find this? So k here is a let's say function of sigma. So we have something like numerator and denominator both are functions of sigma. So it's like when we have to differentiate it. So what rule would we apply for the differentiation? UV rule. UV rule, yeah, it's a product rule. Anybody else? Simpler than that. UV का ही मतलब ना एक सर U by V है जी. U by V, हाँ, U by V rule लगाएंगे. So let's say this is our U, this is our V. ठीक है? So of that, so you can try it yourself. I'll not solve it here in the class, but I'll just show you that it is doable. So once you start with this k is equal to, you can keep minus outside. So u is function of this and v is function of this, or you can say u by v simply. And dk by d sigma is this equation. This you have seen in differential calculus. It's very basic. It's known as quotient rule. U by v rule, we call it as quotient rule. जी ठीक है. So I've simply substituted v and du by d sigma minus u into d by d sigma divided by v square. So you can evaluate this. It's very simple. And then you can substitute this equal to 0 for maximum or minimum. Okay. So the answer is actually 1.45 and 3.82. So you can note this down.
These are the break in and break away points. So obviously you can find out from here, because this is positive and then we have zeros on the right side. So obviously this is for the break in point and this is the break away point. Clear? And if you want to try, you can do it with the other one also, which is the transition method, which doesn't require you to do it with respect to, it doesn't require you to do differentiation. Use this method and please verify this at your end. Okay, so this should actually lead you to the same answer as the previous one. Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बीच में हूँ हाँ करेंगे वरना मुझे लगेगा आप सो रहे हैं. Now let's talk about the second one, which is about we had discussed three things at the beginning. We had just noted down three things. One was the breakaway and break-in points. Second was J omega crossing. Third is angle of departure and arrival at the complex poles and zeros. Okay. So second one we will discuss first, which is about J omega crossings. J omega crossings, obviously, if we talk about this plot again. So here we say that the gain is 0, and as the gain is increased, it moves like this and it moves around this way. Because this complex conjugate, this will move symmetric to this one. There's a point at this stage where it actually crosses the J omega axis. So this is the J omega axis, isn't it? So there's a point at this place where it crosses the J omega axis. So obviously at this point we will have some gain K, which will actually be the point of, let's say, point where the root locus crosses J omega axis. We have talked about this, that the significance is that just about this point, after increasing the gain, we will lead into the unstable region. Okay, and less than that we are into the stable region. So our system is stable to the left, or system is unstable to the right. So that's why this is one of the significant, let's say, points. And second thing is we can also find out this point exactly. What is this point? How much is the amount of the imaginary part in this? So J omega, let's say it's 3 here. It may be something like 3.5. So accordingly, we know that what is the omega? Omega is actually the frequency of oscillation, isn't it? So we can find out that frequency of oscillation. We can find out this point. We can also find out the gain. That gain will tell us the maximum gain that can be used for the system, after which the system will go into the unstable region. Clear? Now, any hint from your end, how would we find out this J omega axis? This crossing. Rhodes criteria. और बताइए, जिसने इसको लेट्स से पढ़ा नहीं है इस टॉपिक को खुद से, अगर कुछ ऐसा है कोई जिसमें थोड़ा कुछ हिंट दे सकता है कि कैसे हम ढूंढ सकते हैं. देखिए, आपको एक बात तो पता है, रूट लोकस की जो फीचर है कि हर पॉइंट जो रूट लोकस के अंदर है वो सेटिस्फाई करेगा हमारी जो 1 + GSHS = 0, isn't it? 1 + A GSHS = 0, तो वो करेगा और अकॉर्डिंगली वो उस एंगल क्राइटेरियन को भी सेटिस्फाई करेगा. यानी कहीं पे भी पॉइंट पे भी एंगल क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, isn't it? ये बात भी सही है, ठीक है? Yes, sir. तो यहाँ पे भी एंगल क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए और मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होना चाहिए. लेकिन how can we find out really the point where it crosses J omega? How does it tell us about J omega? So one thing about J omega is that it is a marginally stable system, isn't it? Yes, sir. और J omega एक्सिस या मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हम जब राउथ्स क्राइटेरिया पढ़ते थे स्टेबिलिटी में, तो उसमें हमें J omega एक्सिस पे जब कोई रूट होता था, जब हम देखते थे लेफ्ट साइड में कितने, राइट साइड में कितने हैं और J omega एक्सिस पे कितने रूट्स हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज करते थे हम? सर 0 आता था ना वो हमारा. हाँ. Even So having roots on the J omega axis were determined by knowing this fact that we will have as a row of zeros. अगर हमारे पास रो ऑफ जीरोस आता है, इसका मतलब है कि हमारे पास J omega एक्सिस पे रूट्स हैं. ये हमारी एक कंडीशन थी, isn't it? Yes, sir.
तो हम उसी कंडीशन और उसी थ्योरी को लेट से यूज करके ये रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन दिस केस, so we can just maybe define it. For it's a point on the root locus that separates the stable operation of the system from the unstable operation. ठीक है? Yes. So the value of omega at this point gives us the frequency of oscillation. ठीक है? While gain at this point yields the maximum gain for system stability. Clear? Yes. So obviously, as per the Raoult's criteria, we will just use the same one. So we'll demonstrate this with an example rather than some theoretical lines for it again. So let's say we have a system. I hope I have done the same one. Yes. Let's say we have a system like this. So let's assume we have a system like this, which is a fourth order system. Okay. So now Ts obviously represents the closed loop transfer function. All right. And so obviously we have gain at the denominator also, which obviously means that it can actually modify the roots of this system, and accordingly it can actually change the stable and unstable behavior and all those things we have already seen. Now to see this j omega crossing, so we will say that obviously forcing a row of zeros in the Raoult's table will or should yield the gain, and then going back one row, so it's again using the same principles, going back one row to the even polynomial and solving for the roots will yield the frequency at the imaginary axis crossing. Okay, so this will be demonstrated like this. So now this is the equation, but this is the characteristic equation: s to the power of 4 plus 7s cube plus 14s square plus 8 plus 8k plus 3k. Okay, now we'll construct a Raoult's table, so we'll have s4 as the maximum, then s cube, s square, s, and s to the power of 0. So accordingly, we'll use 1, 14, and 3k in the first row, which is there. 1, 14, and 3k is the first row. And the second row, we have 7, 8 plus k, and 0. That's what I have written here. 7, 8 plus k, and 0. All right. Now, if you evaluate it at your ends, so multiply these two and multiply these two and subtract from this multiplication divided by 7, you get something like 90 minus k, and you will get here 21k. Okay, 1 into 0, 0, minus 7 3s are 21 divided by 7. So this will be 3k, and you can even divide it. I think there is some correction. So if we evaluate this one first, let me evaluate it here only. So this is 8k, 8 plus k, minus 7 4s are 28. So 98 divided by 7. So this is like k minus 90 by 7. So the first is k minus 90 by 7. Second is 100 minus 21k. Hence one is plus divided by this minus here divided by 7. ठीक है, तो k minus 90 by 7, 21k by 7 ये आ रहा है हमारा. तो इसको हम 7 3s are 21 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा थोड़ा सा kind of will have something like a rational number. So to keep it simple, we can multiply 7, ठीक है, to both these coefficients, and it will lead to us 21k, and this is k minus 90 or 90 minus k. So this is correct. ठीक है, यहाँ पर minus 21k होगा और माइनस का बाहर रहेगा तो प्लस 21k होगा, तो इसलिए इसमें माइनस नहीं आएगा. Is it clear? Yes, sir. And then we can move ahead. Let's say if we stop here only and we want to force a row of zeros. So is there any value of k that will lead to this completely row as 0?
So to make this 0, I need to put k is equal to 90. So 90 minus 90 is 0, but this will be 90 into 21. So this is not a 0. So this is a non-zero. So I will not have a row of zeros here. अगर यहाँ ट्राई करूँ तो यहाँ ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भी रो ऑफ जीरो नहीं बनेगा, ये भी रो ऑफ जीरो नहीं है, ये भी रो ऑफ जीरो नहीं बन सकता, तो ये तो हमें दे ही नहीं सकता फिलहाल. तो हम आगे चल सकते हैं. आगे मीन्स 7 into 0 0 this 0, but sorry for the other one. So first one is 7 into 21 minus this divided by this. So we'll have, I'll just evaluate it here only. Maybe I'll use a rough sheet. So this is 7 into 21 k minus 90 minus k into 8 plus k divided by, this is minus to the outside, this is the determinant divided by 90 minus k. सर वहाँ पर 3 के आएगा शायद. कहाँ पे? हाँ 3 आएगा ना, लेकिन मसला है कि यहाँ पे फिर डिवाइड बाय 7 आएगा. अच्छा ठीक. मैंने यहाँ डिवाइड किया ना, ये वाला क्या थी 3, अगर यहाँ पे आएगा k minus by 7, तो उसको थोड़ा सा ना ये सिंपल करने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 7 दोनों कोएफिशिएंट को दिया. ठीक है. 7 into 7 14 147 k minus 90 into 8 60, 90 into k is 90 k, so minus 90 k, this is plus 8 k plus 8, sorry, plus k square. This will be minus of k square. Sorry, 8 into 90 is 720. 720 आता है 90. 8 into 90 is 720. 72. 72. 72 मैंने क्या लिखा? 56. Thank you. So this is 80 minus 9, 90 minus 8 is like 82. So minus 82k, and then sorry, minus 147 भी हमारे पास. Okay, so this is 147 minus 82, 5, 65. So we have plus 65k, then minus 720, 90 minus k. हमारा आंसर आना चाहिए माइनस ऑफ k square plus 65k minus 720 by 90 minus k. ठीक है, इसको चेक करते हैं. मैंने इसको ऑलरेडी किया है. k square माइनस का अंदर आएगा k square 720. ठीक. All right. So this is the coefficient of the, or you can say the value of the, the coefficient in the S1 row. Obviously, the others will be 0. We'll not maybe write them here. Clear? Now, in this case, there could be a possibility that this could be the row of zeros, isn't it? Because you can see that if we want this to be the row of 0, or let's say let's evaluate the other one, s to the power of 0 first. So it's like 90 into this 0, this into this, divided by this whole. So we'll have 21k here. Even this could be the row of zeros, but for this case, then k has to be 0, which means 0 gain. So let's look at the S1 case. If minus k square plus, sorry, minus 65k plus 720 divided by anything has to be 0. So obviously the numerator has to be 0 then, isn't it? So is it possible to have something like this? So let's check this one, because if this is 0, then we obviously have a row of zeros at the S1 stage. So let's try to see whether this leads to 0 for some values of k. So let's put this in a positive form. K square plus 65k minus 720 is equal to 0. So k will be equal to minus 65 plus minus under root of 65 square plus 4 720. जरा इसको कैलकुलेटर पे देख के करो कितना आएगा. 9.64 minus 94.64. बाकी लोग भी वेरीफाई करें एक बार.
सर यही आ रहा है। क्या आ रहा है? 9.64 minus 74.64. तो हम कौन सा लेंगे? सर जो सेटिस्फाई करेगा, जिससे 0 बन जाएगा। 0 दोनों से बनेगा ना, रूट तो है ना इसका ही। दूसरा क्या आ रहा है? -74. सर जिसमें साइन वही चेंज नहीं होगा वही रखना है ना। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो फिलहाल उस तक मत पहुंचो। अब ये क्या निकला हमारा? 74.64. इधर आओ ना। हाँ जो भी है, ये हमारा क्या निकला? के, यानी इस के पे ये अगर के होगा या ये होगा, उस पे के क्या, या ये क्या बनेगा? ये रो 0 0. 0, लेकिन के क्या है हमारा? गेन गेन। गेन तो गेन का एजम्पशन हमारा ऑलरेडी है कि हम गेन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पॉजिटिव 9.64 पे ही लेंगे। ठीक है, यस तो हम के 9.64 एज्यूम करके कहेंगे कि हाँ जी ये रो ऑफ 0 बन सकता है। सो वंस दिस बिकम्स अ रो ऑफ zeros, then we can say we can substitute this here। एक तो यहाँ लिखता हूँ, मैंने भी ये कंप्लीट नहीं किया। So we can say k is equal to 9 point क्या आया था? 6 4 9.64 comma minus 24.64, ये भी था। yes sir So we can say k is equal to 9.64 for positive gain। ठीक है, हम assume करेंगे, हम ये लेंगे। अब इसको इवन पॉलिनोमियल अगर हम बनाएंगे इससे पहले, इससे पहले वाला रो कौन सा है? ये वाला x2 है ना, तो उससे हम इवन पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो इसका मतलब है 90 माइनस के इंटू एस स्क्वायर प्लस 21k इंटू कुछ नहीं, एस टू पावर ऑफ 0, isn't it? ठीक है, Yes sir. ये हमारा आएगा इवन पॉलिनोमियल p ऑफ s। ठीक है, यस सर। तो हमें गेन तो मिल गया है, जो हमें गेन ढूंढना है वो हमें मिल गया। अब हमें क्या ढूंढना है? बेसिकली Crossing. J omega crossing. जे ओमेगा क्रॉसिंग है ना। यस सर। तो अगर k की वैल्यू 9.64 डालेंगे तो क्या आएगा? ये 80.39 हम्म 80.39 यहाँ आएगा पहले 80.36 स्क्वायर प्लस 21 इंटू, 202.7 मैं अभी एक सेकंड फिल कर रहा हूँ, 202। yes sir 202 ठीक है, so it has to be equal to 0, same polynomial, so s will be equal to 80.36, so will be equal to s square will be equal to minus 2.519। ठीक है, s square is equal to minus 202.44, s square is equal to 202.44 divided by 80.36, this so s will be equal to under root of this, so s will be equal to plus minus j into under root। ये हमारा रूट आएगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आएगा इस जगह पे। सर सर आप एक्सप्लेन करेंगे हमने के क्यों 9.64 लिया फिर से एक और बार, थोड़ा के कंफ्यूजन। की देखिए, के की वैल्यू हमारी, अगर हम सिंपली ये रो चाहते हैं 0 बनना चाहिए। जी सर। ठीक है, उसके लिए कोई के का वैल्यू होना चाहिए जिससे 0 होगा। यस सर। अब इसको न्यूमरेटर से ऑब्वियसली जो होगी, डिनोमिनेटर को तो इन्फिनिटी जाएगा, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर को हमने 0 जब सब्स्टिट्यूट किया तो हमने देखा उसके 2 रूट्स आएंगे, है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जनरली हम जो भी इस वक्त हम काम करते हैं इसमें, जो कंट्रोल सिस्टम में, हमने ये assumption लिया है कि हम पॉजिटिव गेन लेते हैं। ठीक है, जी सर। दो वी कैन मैथमेटिकली टेक नेगेटिव गेन आल्सो, वी कैन इवैल्यूएट दोस थिंग्स आल्सो। ठीक है, सर फिर But नेगेटिव it's- गेन से भी यही आंसर आएगा अगर हम इफ इवैल्यूएट इट ऑन अ नेगेटिव गेन। नेगेटिव गेन
देखिए उसके लिए फिर मुझे लगता है इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, बट उससे आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। जी सर। आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, GS1 प्लस GSHS K इंटू GSHS, जी सर। तो वो भी तब आती है जब आपका जो है ना ये फीडबैक आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है, सॉरी आपका फीडबैक नेगेटिव, हाँ वो उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें के अगर नेगेटिव बन जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, so that has to be seen. I haven't, let's say, evaluated it. I am assuming myself, let's say, K is positive, which is physically there. Okay. जी सर। You can try to put, let's say, K is equal to minus 54.63, जो भी है 64, and see what S comes up. Maybe you can see it here. 9.5 I don't know. square. उससे क्या आ रहा है? 9.5 S square. मतलब नेगेटिव। सर पॉजिटिव आ रहा है। एक 90 point, sorry, 90 minus K is 90 plus 74.64, 164.64, और ये आ रहा आपका माइनस 164.64, 9.52 आ रहा है आपका, ये माइनस आएगा, ये प्लस जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहेगा, हाँ, यस सर। इसका अंडर रूट है 3.08. So in this case, if you see say आपके पास ये जी ओमेगा पे है ही नहीं, क्योंकि आपका जो एस स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यस सर। तो एस तो आपका 3.08 आ रहा है, इसका मतलब एस मतलब एक रियल एक्सिस पे आ रही है ना। तो फिर सिमेट्रिकल भी मत ना है। हाँ सिमेट्रिकल भी नहीं होगा, लेकिन ये मतलब कुछ 3 वैल्यू दिखा रहा है, 3 मतलब एस इज पॉजिटिव, लाइक 0 जहाँ पर 0 है ना, इस पर आपका ये वहीं पे जा रहा है, लेकिन ये इस पे फिर रूट लोकस मुझे लगता है डिफरेंट बनेगा, और ये सारी चीजें हो जाएंगी उसी, ठीक है। जी सर। तो हमारा फिलहाल एजम्पशन ये रहता है पूरी एनालिसिस में कि पॉजिटिव, ये सारी कंट्रोल कम्युनिटी में ये रहता है कि ये शुड बी पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव रखना है तो उसी हिसाब से हम के को शुरू में नेगेटिव रख सकते हैं बाहर, तो फिर उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन, अकॉर्डिंगली उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ आएगी, देखिए अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना ये वाली, जी सर। इसमें अगर हम के को तब भी पॉजिटिव मान के बाहर माइनस रखेंगे, तो माइनस यहाँ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चेंज हो जाएगी, और उसके ये राउट टेबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उससे ये इक्वेशन भी हो सकता है चेंज हो जाए, और हो सकता है उससे रूट्स भी वैसे कुछ देखें हम, बट फिजिकली स्पीकिंग, लेट्स से फिजिकली वी जनरली हैव अ पॉजिटिव गेन्स, ठीक है, वी डू नॉट हैव नेगेटिव गेन्स। जैसे मैथमेटिकली तो इवैल्यूएट कर सकते हैं, और मैथमेटिकली आपका फीडबैक भी पॉजिटिव हो सकता है, और फिजिकली फीडबैक होती है कभी-कभी पॉजिटिव, वी हैव पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द सिस्टम्स आर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स, ठीक है, जी सर। which generally tend to make the system stable. अगर आप देखेंगे बेंजामिन क्रोक की बुक, या उसमें इनफैक्ट पता नहीं ओगाटो में भी होगा, या इनफैक्ट इसमें भी है, नाइस में भी कहीं के दिया हुआ है, सो यू डू हैव दीस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स, दोस इवैल्यूएशन आल्सो डन, ठीक है, बट सिंस दे आर जनरली रेयर, सो वी डोंट एक्चुअली would say go into those aspects, ठीक है। Typically realized or realizable systems generally have positive gains and they are negative feedback systems, ठीक है। यस सर। तो इससे हमें फिलहाल इस वाले में हमें यह मिला कि हमारा गेन चूंकि पॉजिटिव होना चाहिए, उसको इवैल्यूएट करने से हमारा एस मिल गया, शुड बी 1.587, इसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं आगे, उससे हमें ज़्यादा ज़्यादा ये मिलेगा रॉल्स क्राइटेरिया से कि कितने पोल्स ना टू द लेफ्ट एंड टू द राइट है, और फिर जी ओमेगा पे कितने हैं, तो हमें इससे मिलता है, लेकिन चूंकि हमें वो चाहिए नहीं, कि हमें पता है ऑलरेडी जी ओमेगा पे है, और उस जी ओमेगा की वैल्यू हमें ढूंढनी है, इसलिए हम डायरेक्टली के से डाल के इस पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करते हैं, हम कहते हैं कि एस इज इक्वल टू दिस है, और इसका ओमेगा जो है ये 1.58 होगा, ठीक है, प्लस माइनस मींस कॉन्जुगेट पेयर्स में ओमेगा इज दिस थिंग, ठीक है, और वी कैन से दैट दिस इज द पॉइंट 1.587 इज द पॉइंट, ठीक है, वेयर द रूट लोकस एक्चुअली क्रॉसेस। तो यहाँ पर मैंने, अगर आप देखेंगे J3 लिखा है, हो सकता है मैंने गलत बनाया हूँ, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, अभी आप एक सेकंड वेट कीजिए, मैं सिस्टम को यहाँ रूट लोकस इसका डायरेक्ट बनाता हूँ, इसका हमारा क्या है रूट्स,
थोड़ा डायरेक्ट दिया हुआ है, ये असल में ये डायरेक्टली पॉलिनोमियल दिया होता है, डायरेक्ट इसका पूरा इक्वेशन दिया है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जी ऑफ एस को थोड़ा आसान रहेगा। इनफैक्ट ये सिस्टम का नहीं है, मैं क्या दिखा रहा हूँ, ये सिस्टम का नहीं है, आई एम नॉट शोइंग इट द करेक्ट सिस्टम। जो अभी मैं आपको ये ग्राफ दिखा रहा हूँ ये इसका नहीं है, ठीक है, इसका तो नहीं, इसका तो अलग होगा ना कुछ, क्लियर। ये तो मैंने एक रफली एग्जांपल फोर्थ ऑर्डर ली है, ठीक है, whereas this system that which I was showing was a second order system, we had 2 poles and 2 zeros, but obviously this system has just 1 finite zero and 4 ठीक है poles, so obviously इसका ग्राफ तो अलग ही बनेगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास g of s का होना चाहिए शुरू में, तो उसको हम कर सकते हैं, इससे वापस g of s की तरफ ला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, but you can have a g of s of this and you can find out the root locus for this, and accordingly you can find out these points. This can be clear from maybe subsequent maybe some examples we solve, इससे थोड़ा हमें ये क्लियर हो सकता है। देखो मैंने कोई प्रॉब्लम और किया इसका सॉल्व किया, एक सेकंड इसमें एक प्रॉब्लम देखते हैं, तब ये वाला एक प्रॉब्लम है, मैंने यहाँ लिखा है where the forward path transfer function is k into s minus 2 s minus 4 divided by s square plus 6s plus 25. These are the type of problems that, let's say, you can be asked. Let's say this is something like when we put up these as the design problems or maybe evaluation problems. So the first question could be the sketch the root locus, ठीक है, ये मैं असल में आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ कि ये जो हमने फाइंड आउट किया ना जी ओमेगा, ये एग्जैक्टली वही है कि नहीं, वरना भी मुझे एक टॉपिक इसमें दिखाना है। So we could be asked that we are given the g of s and find out the, sketch the root locus, find the imaginary axis crossing, which is the j omega axis, find the gain at the j omega axis crossing, find the break-in point for this root locus, and then we have some other things which we haven't discussed till now, so we'll see these later on, but I wanted to just take these three first because this is what we have done till now. So in this case, we obviously would identify first the zeros and poles. So zeros are 2 and 4. Poles are, by evaluating this polynomial, we will get the poles, and which are evaluated minus 3 plus 4j. मैंने यहाँ इस polynomial को equate किया 0 के साथ इसके रूट्स ढूंढने के लिए, ठीक है, so minus 3 plus minus 4j, ठीक है, तो zeros हमारे ये हैं, poles हमारे ये हैं, इससे हम रूट लोकस फिलहाल बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूट लोकस बनाने के लिए हमें फिर भी क्या चाहिए, ब्रेक इन पॉइंट चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए, इमेजिनरी एक्सिस पास चाहिए होती है ना पूरा डिफाइंड रूट लोकस के लिए। तो एग्जैक्टली जो अभी हमने पढ़ा, जी ओमेगा क्रॉसिंग के लिए हम क्या करेंगे, वी राउट स्टेबल एंड कंसिस्टेंटली वी आल्सो नीड दी क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, बिकॉज राउट स्टेबल में हम क्या यूज़ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन से मिलती है। अभी जो हमारा यहाँ दिया हुआ है वो क्या है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो इसका हम क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन ढूंढ सकते हैं, Ts is equal to GS by 1 plus GSHS. I have evaluated it here because HS is unity. So this is something like this. You'll see this is exactly what we just saw in the previous problem. We had K in the denominator. Okay? And then we use this equation or this denominator in the route table. And उसके अंदर रो ऑफ जीरो फोर्स करेंगे, उससे हम K फाइंड आउट करेंगे। एग्जैक्टली वही किया मैंने, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, एक्सपैंड करके in the form of s square s and constant. So we can substitute this equation into the routes table. These are the coefficients. In this case, coefficient will come from this only. First रो से ही आएंगे बिकॉज हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि इसका तो स्क्वायर वाला पोर्शन ही है, उसके अंदर भी किए जा रहा है। ये असल में सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें वही वाला केस है, इसमें दो पोल्स और दो जीरोस हैं, इसलिए एस स्क्वायर के पास भी जो है कोफिशिएंट आएगा k+1, इसमें आएगा 6.6k. So k will exist in almost all three places. So obviously the first row will also have k, unlikely the other ones. So first row will also has k, and second row, third row is to be evaluated. So in this case again we can see that
we can directly put this row into as row of zeros because there is already a zero present out of the system's nature. So in this case, we can just say k is 1. So 6 minus 6 is 0. So obviously, we can say we don't have to evaluate any quadratic equation here. In the second row, 6 minus 6 will tend to 0, which means k is equal to 1 will lead to a row of zeros, possibility of the g omega axis. Now, the method is same, going back one step back and constructing an even polynomial. So k plus 1 s square plus 25 plus 8k आएगा हमारा polynomial. ठीक है, उसको हम इक्वेट करेंगे 0 and we'll put k is equal to 1. So it will be 2s square plus 25 plus 8 is 33. So 2s square plus 33. 2s square plus 33 will equate to 0 to find out the g omega axis, the pole at, the point at g omega axis. So s will be equal to minus 33 by 2 and it will be negative. So we'll have, s square will be minus 33 by 2. So s will be equal to plus minus j into under root of 33 by 2, which is plus minus 4.06 as the g omega crossing. ये ठीक है? Yes, sir. इसको मैं क्यों दिखा रहा था इस प्रॉब्लम को, वरना जब दिखाने नहीं था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था मैटलैब से ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. तो इसका जो फॉरवर्ड पार्ट ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या है, इसको हम लिखते हैं थोड़ा सा मैटलैब में, s-2 s-4. तो भी मैटलैब दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने न्यूमरेटर को लिखा इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल विद द रूट्स 2 and 4 बिकॉज दिस इज -2 - 4 मींस 2 and 4, and then denominator is in the form of polynomial, so I can directly write the coefficients 1, 6 and 25. So I'm writing denominator in the form of 1, 6 and 25 rather than the poly command, because I have the coefficient, the roots here I directly have the polynomial. I say the transfer function and I say root locus of this. I'll just put these two comment. Okay, so if I plot the root locus for this problem, हाँ जी, दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. देखिए, अगर ये हम इसको देखें ना मार्कर से भी, ये हमारा पॉइंट है पोल्स का, ठीक है, जहाँ पर हमारा -3 + 4j इज द पोल, ठीक है, और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हमारे दो जीरोज हैं, एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, ठीक है. तो इसमें हम देखेंगे, हमें ये देखना है बेसिकली जी ओमेगा क्रॉसिंग फिलहाल देखनी है हमें. तो जी ओमेगा क्रॉसिंग कहाँ हो रही है? यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं मार्क करूं तो ये थोड़ा सा लेफ्ट में मार्क कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे लगभग -0.18 है, बिकॉज अभी लेफ्ट में है, +4.12 जे या आई है इसका. और हमें अभी क्या मिला था आंसर? 4.06 या 4.04 जो भी है. इसको हम देखेंगे कि रूट लोकस एग्जैक्टली उसी पे जा रहा है ना, जी ओमेगा क्रॉसिंग वहीं हो रही है. तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये पॉइंट है हमारा जहाँ पर क्रॉस कर रहा है. तो ये डॉटेड लाइन हमारी जी ओमेगा क्रॉसिंग है, और ये लाइन जो ब्लू लाइन है हमारा रूट लोकस है, ठीक है. तो इसका मतलब, ठीक है, सो एट दिस पॉइंट दिस इज द जी ओमेगा क्रॉसिंग एंड दिस इज द रूट लोकस वेयर इट क्रॉसेस. सो इट्स अराउंड, इफ आई जस्ट अगेन जूम इट, सो इट्स अराउंड 4.06 टू द लेफ्ट. आप देखेंगे 4.05. क्लियर? यस सर. Yes, sir. आया समझ? तो ये मैं इससे आपको दिखाना चाह रहा था, इससे हम रूट लोकस की जो सॉरी ये जो है ना जी ओमेगा क्रॉसिंग, ये ढूंढ सकते हैं. तो हमें ये पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये पॉइंट मिल जाता है, और ये पॉइंट हमें मिल गया. रूट लोकस में हमें ब्रेक इसमें आएगा, ब्रेक अवे इसमें आएगा ही नहीं कोई पॉइंट, बिकॉज ये जो है पोल्स जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स है, रियल एक्सिस पे है नहीं, तो इसमें ब्रेक अवे तो होगा नहीं. लेकिन बिकॉज जीरोज आर ऑन द रियल एक्सिस, सो विल हैव ब्रेक इन पॉइंट्स. So in this case, the root will move from zeros. Sorry, the roots will move from zeros to the poles. ठीक है? Sorry, poles to the zeros. So in this case, no break away, but break in at some point. So break in भी हमने ढूंढ लिया.
तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ब्रेक इन भी ढूंढ लिया हमने। सपोज इस क्वेश्चन के लिए हम ढूंढ सकते हैं k इज इक्वल टू 1/GSHS को एस को सिग्मा डालकर डी के बाई डी एस है ना सिग्मा करके हम वैल्यू ढूंढ सकते हैं के का, सॉरी सिग्मा का। ये पॉइंट भी मिल गया, ये 2 पॉइंट्स भी मिल गए, ये पोल्स भी मिल गए और ये पॉइंट भी मिल गए। तो एक हिसाब से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। Yes, sir. Clear? So we have refined root locus to some extent now, where we are able to see it in a more refined form. Maybe I'll just show it to you in this one, because this is the same one. So now look at the camera again. So this was the problem that we just solved. So we have got this point 2, we have got 4 because this is from the zeros, we have the poles, and we have even got the j omega axis, which is somewhere here, और ब्रेक क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक इन पॉइंट भी हमें मिल सकता है इससे। जो ब्रेक इन पॉइंट है जीरोस के बीच में होगा, उसके लिए एस सिग्मा सब्स्टिट्यूट करके हम डी के बाई डी सिग्मा को करेंगे इवेलुएट। इसको आपको देखेंगे इस प्रॉब्लम को, और के हमें इस तरह निकल जाएगा सेम एज दिस। इसको डी के बाई डी सिग्मा करेंगे 0 सब्स्टिट्यूट, ये इवेलुएट होकर हमारा सिग्मा आएगा -5.71 और 2.88। So obviously -5.71 in this case is not valid. 2.88 is the valid one because this is between the zeros 2 and 4. ठीक है? So it will be somewhere 2 and 4 means somewhere here 2.88. अभी हमें पता है कि हमारा रूट लोकस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ के थ्रू जा रहा है, इसके थ्रू जा रहा है और फिर ऐसे जा रहा है। इसमें तो हमें पता है रूट लोकस ऐसा है, so रेड कलर का मैं बनाऊंगा रूट लोकस। लेकिन यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा रूट लोकस, ऐसे जाएगा है ना, ऐसे जाएगा। हाँ, तो यहाँ से कैसे जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, इस तरह जाएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन यह है कि यहाँ से तो क्रॉस करेगा रूट लोकस, ठीक है, और यहाँ पे भी अंदर जाएगा ये समहाउ। लेकिन होगा क्या, वो एंगल एग्जैक्टली रूट लोकस कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि मैटलैब जो कर रहे हैं, मैटलैब भी किसी थ्योरी से कर रहा है ना। मैटलैब के अंदर कोई प्रोग्राम बने हैं ना, आर लोकस कमांड से तो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, बट हाउ डज मैटलैब डू इट? So MATLAB will have some theory behind, isn't it? That's what MATLAB is doing. MATLAB is just a computer, isn't it? Computer is just solving something behind and then giving you a root locus. How does it evaluate it? It has to be something like this, not this one, but it has to be something like this. So these are something what we call as angles. So we have something called as angles of departure and angles of arrival. Departure कहाँ पे होगा? अवे से। डिपार्चर कहाँ से होगा? पोल से होगा कि जीरो से होगा? पोल से, बिकॉज पोल से ही रूट मूव करते हैं आउट। जीरो। और अराइवल कहाँ होगा? जीरोस, because the root locus finally moves to the zeros, so arrival will always be at the zeros. So that's what we have to discuss something called as, in this one, the another refinement is the angle of departure and arrival. ठीक है? How do we now calculate this angle of departure and arrival? So angle of departure obviously is nothing but the angles with which the root locus actually leaves the poles. ठीक है? And angle of arrival is the root locus, how it actually arrives near the zeros. अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसा है, सपोज जिसमें पोल्स इस तरह हैं, 1 and 5 मैंने लिखा है इनका नंबर, कुछ पोल्स का नंबर है, ये वैल्यू नहीं है। 1 4 5 है हमारे पास, और 2 3 6 हमारे पास जीरोस हैं। तो ये कौन सा सिस्टम बन गया? टेबल। कौन से टाइप का सिस्टम है ये? Third order system, because we have 3 poles and we have 3 finite zeros in this case. So it will be like some numerator also will have third order and denominator will also have third order. But this is a typical case where we see that we have 2 complex zeros and 2 complex poles, and a single complex pole and a real pole and a real zero. So obviously maybe one of the root locus could be simply that it may take from 4 to 6, isn't it? This could be one of the possible root locus, because this is, अगर रियल एक्सिस पे देखें तो ऑड नंबर के बाद है, तो ऑब्वियसली इसके बीच में एक रूट लोकस हो सकता है आराम से, है ना। तो दूसरा रूट लोकस हो सकता है इस पोल से जीरो तक, ये भी रूट लोकस हो सकता है इसका, है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ तक रूट लोकस है फिलहाल, उसी का एग्जैक्टली कॉपी नीचे होगा। यहाँ से यहाँ अगर होगा तो उसके लिए
इसको कैसे जाना है, स्ट्रेट लाइन जाना है, कर्व जाना है, कैसे जाना है, और यहाँ पर जब पहुंचेगा तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन पहुंचना है, कैसे पहुंचना है। अगर मैं इसको पेंसिल से बनाऊं, सपोज वो ऐसे भी जा सकता है ना, रूट्स, लेकिन ऐसे भी मूव कर सकते हैं, रूट्स ऐसे भी मूव कर सकते हैं, है ना। सो विच इज द राइट way for it? So we need something called as the angle of departure, how it leaves from the root locus with respect to the real. जो हम देखते हैं ना हर वक्त एंगल किससे देखते हैं हम, रियल इंटरसेप्ट से हम देखते हैं ना एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना एंगल पे ये इससे जा रहा है बाहर, ठीक है, और किस एंगल से ये यहाँ पे पहुंच रहा है। So this can be angle of departure, this can be angle of arrival, ठीक है। तो वो भी हम इवेलुएट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा जो हमारे जीरोस या जो हमारे पोल्स ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ पे हमें एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने हैं, तो उस पर हम एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम देयर इज सम पॉइंट, लेट्स से एप्सिलॉन, व्हिच इज वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट of it could be a pole, or it could be a zero. I'm looking for an eraser actually. So in this case, we generally look for a point on the root locus actually which is close to the complex poles, so, or complex zeros, let's say, for departure and for arrival respectively. So let's say अभी हम पहले का एंगल ऑफ let's say डिपार्चर की बात करते हैं, तो डिपार्चर होगा हमारा पोल से। तो हम एज्यूम करेंगे एक पॉइंट इसके नियर है बहुत, इस तरह, उसको हम एप्सिलॉन नाम देंगे या कुछ और भी हम नाम दे सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट है जो इसके नजदीक है, और ये पॉइंट क्या होना चाहिए, रूट लोकस पे होना चाहिए, है कि नहीं, है ना। अगर एंगल अगर ऐसा निकल रहा है रूट लोकस, सपोज एंगल ये है इसका, ठीक है, ये एंगल है इसका, तो हम ऐसे बना सकते हैं ना इसको रूट लोकस को, सपोज इसको छोड़ दो फिलहाल। अगर ये है तो ये पॉइंट अगर कोई इसके नजदीक है और अगर ये ठीक है, तो हम नाम देंगे which is obviously a complex in this case. तो ये पॉइंट जो होगा जिसके काफी नजदीक है इससे, अगर वो रूट लोकस पे है तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए ना वो वाली हमारी 2k plus 180 and क्या था वो, हाँ, summation of and angles of zeros and a summation of angles of poles 2k has to be plus equal to, 1 multiplied by 180. है ना, ये हमारा एंगल क्राइटेरिया था अगर ये हमारा रूट लोकस पे है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो इसके काफी ठीक है, वेक्टर्स 1 2 3 यहाँ से कुछ 4, ठीक है, और यहाँ से 5, अगर हम इनको डालेंगे all these angles and plus an angle from here, the pole itself to that point, will have to add up to this criteria. बस ये क्राइटेरिया क्या है, ये क्राइटेरिया है कि रूट लोकस पे अगर पॉइंट है कोई भी, तो वो पॉइंट हमारा ये सेटिस्फाई करना चाहिए। उस पॉइंट तक अगर हम जीरोस और पोल से डालेंगे कोई भी वेक्टर, उनके एंगल्स कंट्रीब्यूशन जो होंगे जो हमारा यहाँ इस तरह बनेगा, हमारा इस तरह बन रहा है, ठीक है, और अपना इसका थीटा 1 सपोज। तो अगर ये 1 नंबर मैंने दिया इसको, तो थीटा 1 और ये थीटा 2 आएगा, ये हमारा थीटा 3 हम लिख सकते हैं इसको, ये थीटा 5, थीटा 4, थीटा 6, all these should sum to 0, but obviously we have to sum zeros minus poles. So zeros are theta 3, theta 6, theta 2. So theta 3, theta 6 and theta 2 will be positive. So zeros minus poles. Poles कहाँ कहाँ है? 4, 5 and 1. 4, 5 and 1. All these have to be negative. They have to sum to 2k plus 1 into 180. Odd multiple of 180 degrees. So theta 1 हमें is the interesting or the point of interest because we want to find the angle of departure. So theta 1 obviously will be, can take it to the right side.
then it will be equal to theta 2 plus theta 3 minus theta 4 minus theta 5 plus theta 6. इसको लेफ्ट में लाएंगे. So this thing. So this is how you can easily find out the angle of departure. इसका हम प्रॉब्लम जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें देखेंगे इसको. इसी तरह हमारे पास एंगल ऑफ अराइवल है. एंगल ऑफ अराइवल में सिमिलर कॉन्सेप्ट है. चलो इसी प्रॉब्लम के लिए देखते हैं. तो अगर हमारे पास ये नंबरिंग क्या थी, 1 2 3, this was 1 2 3 4 5 6 4 5 and 6. सेम प्रॉब्लम है. अब अगर हमें इसका एंगल ऑफ अराइवल ढूंढना है तो अराइवल ऑब्वियसली 2 या 3 पे होगा. सपोज 2 पे अराइवल है, 2 पे अराइवल है तो 2 के नजदीक हम एक पॉइंट अज्यूम करेंगे सालन. ठीक है. And then we'll draw the vectors up to that point, something like this. The 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. और इसका अपना 6. This will be theta 6 in this case. Theta 1, theta 4, so theta 2 is the angle of arrival. So theta 2, again same addition of these angles as with poles and zeros lead us to theta 2 is equal to something like this. अब सवाल है कि थीटा 1, थीटा 3, थीटा 4, थीटा ये कैसे इवेलुएट करेंगे. इसके लिए एक एजम्पशन है इसमें यही कि ई चूंकि एक जो पॉइंट है रूट लोकस काफी क्लोज है इसके, तो हम एज्यूम कर सकते हैं जो पॉइंट 2 है उसी को हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो ये वहीं तक वेक्टर जा रहे हैं, तो ये काफी क्लोज है. तो उसके लिए क्या होगा, जो 2 की जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं 6 के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमें ये वेक्टर मिलेगा. उस वेक्टर की हम जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं. क्योंकि हम डायरेक्शन में इंटरेस्ट है तो उसके हम डायरेक्शन को टैन इनवर्स से हम इवैल्यूएट कर सकते हैं और उन्हीं को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. इज इट क्लियर? यस सर. सर आपने जो ये पहला वाला दिखाया ना इससे पहले एंगल ऑफ डिपार्चर का, आपने बोला था सर जो कॉम्प्लेक्स पोल्स उसमें आ रही थी वहां से जो हमारा मतलब वो अवे होना स्टार्ट करेगा डिपार्चर. सर उसमें एक पोल हमारा रियल एक्सिस पे भी था ना सर, तो सर वहां से रियल एक्सिस पे तो रियल एक्सिस पे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन रियल एक्सिस पे जनरली क्या होगा वो मतलब अगर वहीं जीरो वहीं पे है तो ऑब्वियसली उसके साथ ही जाएगा. ठीक है. लेकिन मतलब ना स्ट्रेट लाइन एज अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आप क्या करेंगे, सपोज अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम ये ऐसा है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास s+2 s+3 और कुछ पॉलिनोमियल है. इसका ओपन लूप 0 हमारा -2 पे है. मैंने यहाँ मार्क किया. ठीक है. -3 पे इसका पोल है, एक रियल पोल है और एक कॉम्प्लेक्स पोल इसकी वजह से आएगा, वो यहाँ पे है. सारे हमारे ओपन लूप पोल्स हैं और 0 है. ठीक है. तो इसमें क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिपार्चर आपको ढूंढना है और स्केच द रूट लोकस. सपोज हमने रूट लोकस बना लिया या कुछ बना लिया, अब हमें एंगल ऑफ डिपार्चर ढूंढना है. पहली बात, हमारा रूट लोकस कहाँ आइडेंटिफाई होगा, जो रूल नंबर आई थिंक 2 और 3 ऑड नंबर ऑफ ऑन द रियल. तो यहाँ ये तो कॉम्प्लेक्स वाले इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ऑड नंबर कौन सा, ये 1 है. 1 के बाद रूट लोकस होगा, इसका मतलब रूट लोकस पहला ऐसे ही होगा, वो ऑड नंबर के लेफ्ट होगा. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट होगा पोल से, तो ये 0 पे फिनिश हो जाएगा. ये एक रूट लोकस का एक ब्रांच ये होगा और 2 ब्रांच होंगे. एक ब्रांच यहाँ से निकलेगा इन्फिनिटी पे जाएगा, दूसरा यहाँ से निकलेगा इन्फिनिटी पे जाएगा. ठीक है. अब यहाँ से निकलेगा कैसे, इसका एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, इसके नियर अबाउट हम पॉइंट देखेंगे और उस पर हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे. सर इसमें ब्रेक पॉइंट एक ही होगा इसकी वजह से इस पे ब्रेक इसमें नहीं होगा ना. इसमें सर ब्रेक इसमें -3 और -2 से निकलेगा ना, जब सेंटर पे एक पॉइंट तो आएगा ना जिससे ये नहीं जाएगा. नहीं, वो बाहर कहाँ जाएगा, उसको जाना कहाँ, वो तो अच्छा पोल से निकल के 0 पे पहुंच गया बस, उसको तो हो गया ना. सो इसमें ब्रेक कवर ब्रेक इन होगा ही नहीं. अब इसके अंदर आपका रूट लोकस एक तो ये है, दूसरा रूट लोकस यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कहीं निकलेगा
इन्फिनिटी पे यस सर जाएंगे, ठीक है। जीरो तो इंफिनिटी पे इन्फिनिटी होंगे पे इसके और जीरो पे जब आते हैं ना रूट लोकस, तो सपोज ये पॉइंट इन्फिनिटी पे जाएगा, अब जीरो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से अगर हम ये वेक्टर डालेंगे ना, इन्फिनिटी पे हमारा हमारा सपोज पॉइंट है जीरो, अगर हम उस पर देखेंगे ना एंगल ऑफ अराइवल, तो अगर हमें क्या करना है, इसको हाँ ऐड सर करना है इन एंगल्स को, है ना। लेकिन अगर इन्फिनिटी पे होगा तो आपको क्या लगता है एंगल्स क्या बनेंगे, इसके चारों एंगल्स? हाँ जी, तो फैल साहब कोई और आप कैसे बताइए। सर वो 90 सर किसके एंगल? तो फैल साहब एंगल ऑफ अराइवल एट इन्फिनिटी 0. जीरो होता है, मतलब ऐसे सर सर 180 एंगल है, Yes, सर sir. ये 90 तो 180 नहीं ये होगा हो गया, सर 90 होगा सर। ये 90 हो गया, यस सर। 90 कैसे करेंगे इवेलुएट, मतलब ना थ्योरेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? थ्योरेटिकली अगर मैं देखूं यही इनफाइनाइट फॉर्मूला लगा डिस्टेंस। के, ये पहले तो ये है कि हाँ, नहीं पहले ये है कि हम ये क्या वो लगा सकते हैं कि नहीं इस पे, क्योंकि हमें देखना है कि हमारा एंगल जो है ना वो कहाँ सम क्या सम करना चाहिए, वो 180। सम अप टू 2k प्लस 1 टू 180, ठीक है। इसका मतलब अगर इन्फिनिटी पे कोई एंगल है, सिर्फ थीटा है तो इन्फिनिटी, तो क्या है जीरो, ठीक है, प्लस थीटा है 2 माइनस 90। 180. 90 और थीटा है ये वाला -3, -3 भी क्या होगा, ये भी 90 होगा ना, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ना काफी, Yes, sir. है ना? और इस पे क्या होगा, अच्छा ओके ठीक सबके लिए 90 होगा ना, इन दो का 90, इसका भी 90, इनका -3, इसका +90। और इन्फिनिटी पे जो जीरो उसको हमें लेना है कि नहीं, अगर इन्फिनिटी पे जीरो को भी लेते हैं इक्वल टू 180 डिग्री, तो दिस इज 90 माइनस 90 कैंसिल, 90 माइनस 90 कैंसिल, 180 प्लस 90 इज 270, ये 99 कैंसिल होगा, -180 ये आएगा आएगा। माइन नहीं, ये होगा ना 90 90 कैंसिल, 90 यस सर। माइनस 90 आ जाएगा, 270। मतलब ये होगा 180 प्लस 90 270। 270, इसकी देखना बात है ना, क्या इसकी 270 को ये कौन वो ना, ये एंगल ही था, देखिए ये एंगल था कि नहीं खसता से रूट लोकस, मगर तो कौन बना इसको, अगर रूट लोकस ऐसे जा रहा है सपोज, किसी भी पॉइंट पे ढूंढने के लिए हमें एंगल 90 होना चाहिए इसका। चलो इसको मैं देखता हूँ, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, इन्फिनिटी बिहेवियर के बारे में देखना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए, मैं भी देखता हूँ इसको। अच्छा, इसके अलावा फिलहाल हम फाइनाइट की बात करेंगे, उसको थोड़ा और भी देखता हूँ, अगर इन्फिनिटी पे है इसको ऐसे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम नोट इट डाउन, फिलहाल इसकी बात करेंगे फाइनाइट की, तो फाइनाइट जीरोस इज -2, open local is -3, and then we have two complex poles which are evaluated because of this characteristic equation, ठीक है। And then we can find out the angle of departure because we don't have any arrival at this point. Departure from these complex poles can be done in this form, okay. In this case it comes out to be theta is equal to 108.4.
हाँ उमर, आप क्या पूछ रहे थे? मैं आपका क्वेश्चन भूल गया। सर सर अगर पोल रियल जी उमर। एक्सिस पे होगा तो उससे एंगल ऑफ डिपार्चर मैंने बोला था, वही कैसे होगा सर? हम्म पोल यहाँ पे हमारा रियल यस एक्सिस सर। पे, ये जाएगा 0 पे, ठीक है। हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर जब पोल्स दो होंगे और उनके बीच में जो यस सर। है ना ब्रेक अवे होगा, तो उस ब्रेक अवे पे एंगल जनरली क्या होगा वो हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो वो आप इवेलुएट कर सकते हैं। और वो भी अगर हम फाइनाइट की बात करेंगे तो वो हमारा जनरली जो ब्रेक इन और ब्रेक अवे होता है ना, इन दोनों को हम इवेलुएट कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी एक्चुअली 90 डिग्रीज, ठीक है। इसीलिए आप अगर देखेंगे रूट लोकस में कोई भी इस तरह के प्लॉट्स, यस यहाँ सर। पर जो है ना ये एंगल ये लगभग ये थ्योरेटिकली 90 डिग्रीज है। अभी मैंने इसको जूम काफी किया है, हाँ लेकिन सर, दिस इज लेट्स 90 से दिख 90 रहा है। डिग्रीज। ये तो दिख रहा है, लेकिन जनरली ये 90 हम एज्यूम कर सकते हैं इस तरह, इस मैक्रो लेवल पे भी, ठीक है। बिकॉज वी आर फाइनली स्केचिंग दीज थिंग्स, यस राइट। किसी भी रूट लोकस में जहाँ पे भी ब्रेक इन ब्रेक अवे होगा, उसका 90 और वो इवेलुएट कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से, जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज वो पॉइंट भी रूट लोकस पे ही है, तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए रिलेशन, यस सर। ठीक है। अब ये है कि वो नियर अबाउट टू ऑब्वियसली है नहीं, लेकिन वी कैन प्रॉब्ली दिस रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड, ये रिलेशन तब भी सेटिस्फाई करना चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द जीरो सम ऑफ पोल्स हैज टू बी नॉट मल्टीपल ऑफ दिस फॉर एनी पॉइंट ऑन द रूट लोकस। उस पे हम, हाँ उस पर अलबत्ता सिर्फ हमें ये देखना है कि हमें थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसमें हम ब्रेक इन पॉइंट क्योंकि हमें पता है, तो इसलिए हम ब्रेक इन पॉइंट से उस पॉइंट तक को पोल्स और जीरो तक हम वो पॉइंट मेजर कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उनका एंगल और वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, जो 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है। सो रूट लोकस एट सॉरी ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट विल एक्चुअली लीव और कम एट 90 डिग्रीज, क्लियर। तो अगर ये वाला प्रॉब्लम भी हम देखें जो हमने अभी सॉल्व किया, इसमें हमने ये ढूंढा था, जिसमें हमने ब्रेक अवे पॉइंट सॉरी इमेजिनरी एक्सिस और ब्रेक इन पॉइंट ढूंढा था, जिससे पहले हमने किया था सॉल्व। अभी इस प्रॉब्लम में भी हमें यही जो एग्जैक्टली अभी मैटलैब में किया था, इसमें ये एग्जैक्ट एंगल क्या है ये वाला, वो हम ढूंढ सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। हमने सिग्मा ढूंढ लिया इसका, 2.88 पे इसका ब्रेक इन है, ठीक है। 2.88 पे इसका ब्रेक इन पॉइंट है, बिकॉज दैट विल बी similar to what is in the root locus plot. You can check it now. So this point is at around 2.8 something, isn't it? यस सर। हाँ, जो यहाँ पर मेरा 2.88 दिख रहा है, क्लियर। ये हमने डिफरेंशिएशन से निकाला, तो हमें ब्रेक इन पॉइंट मिल गया। तो इसके बाद हम इसकी जो है ढूंढ सकते हैं हम इसकी जो एंगल ऑफ डिपार्चर, ये यहाँ पर मैंने लिखा है, तो θ1 θ2 θ3 θ4, so I am actually denoting these as in this case if I say 3 and 4 are poles, so this is my for 3 and 4, I'll just mark it with pen. This point number 3, this point number 4, this point number 1 and point number 2. Points को मैं denote कर रहा हूँ rather than the values. So 3 and 4 denotes poles, 1 and 2 denotes 0. So 1, 2 minus 3 minus 4 is equal to k plus 1 into 1t. So this should give me the angle of departure. At pole minus 3.4 plus 4, जो ये हमारा पोल है यहाँ पे इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। So I can evaluate it this way. So if you want, I can do it. So I need to see for this problem the angle of departure. So ये वाला पॉइंट मुझे निकालना है, इस पे कैसे निकलेगा ये एंगल क्या है, थीटा 3, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ 4 से बनाऊंगा एक वेक्टर, पॉइंट ई जो इसके नजदीक है, थीटा 4 क्या होना चाहिए? हाँ जी, आप में से कोई बताइए। 90 डिग्री। 90 डिग्रीज, ठीक है।
ठीक है, थीटा 4 क्या होना चाहिए, 90 डिग्रीज, ठीक है। व्हाट अबाउट एंगल फ्रॉम 2 and 4? tan inverse. थीटा 2 थीटा 4, ये मैंने जो लास्ट टाइम आपको tan का वो कॉन्सेप्ट बताया, अभी ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इनको निकालने के लिए 180 माइनस tan इनवर्स करते हैं। मैं ये एंगल निकालूंगा, है ना, ये एंगल निकाल के 180 माइनस को करूंगा तो हमारा थीटा 2 आएगा। चलो तो थीटा 2 डैश, तो थीटा 2 डैश का क्या है, एक्यूट एंगल और राइट एंगल है, सो दिस इज tan ऑफ दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 4. हमारा, इसकी हाइट 4, बेस क्या है 5. -3 से जाके 3 और ये 2 यूनिट्स 1 और 2, तो 5, वही मैंने लिखा है 4/5 और 180 माइनस किया है इसको। थीटा 4 के लिए भी यही करूंगा मैं, 180 माइनस दिस एंगल, ठीक है, 180 माइनस इसका क्या होगा, tan इनवर्स ये क्या है 4/3 प्लस 8 units. कितना हुआ ये, 4 प्लस 3 7, tan इनवर्स 4/7। इसको आप इवैल्यूएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वाड्रेंट्स की, क्योंकि 180 आपने ऑलरेडी लिया है। ये करके आपको थीटा 4 माइनस 90 डिग्री ऑलरेडी है आपका, माइनस बिकॉज ऑफ पोल्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका थीटा 3 आएगा 21.6 डिग्री। इसका मतलब इसका एंगल ऑफ डिपार्चर जो होगा वो 21 डिग्रीज के करीब होना चाहिए, तो ये लगभग ऐसे निकल आती है, ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, ये पॉइंट हमें मिला था। तो इसको आप मैटलैब से भी देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वही है कि नहीं। देखिए ये लगभग वही एंगल है, इसको तो मेजर करने के लिए मुश्किल है यहाँ पर टूल्स कोई, लेकिन अगर आप इस एंगल को देखेंगे ध्यान से, ये वही एंगल है 21 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर। तो इससे हमने एंगल ऑफ डिपार्चर भी निकाल लिया। अब हमारे पास एंगल ऑफ डिपार्चर भी है, एंगल ऑफ अराइवल भी है, लगभग हमारे पास अब सारी इंफॉर्मेशन रूट लोकस की मिल गई है, ठीक है। और स्टेबिलिटी अगर निकालनी है तो स्टेबिलिटी भी हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, कि जे ओमेगा एक्सिस पे जो है इसका गेन क्या हो सकता है, और उसके लिए हम बेसिकली समेशन ऑफ वही पोल लेंथ डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ जीरो लेंथ यूज करके हम उसको निकाल सकते हैं, जे ओमेगा एक्सिस पे एस सब्स्टिट्यूट करके। इसमें एक चीज़ लास्ट मुझे दिखानी है, दिस इज अबाउट लोकेशन ऑफ एक्यूरेट पॉइंट्स। There are something more things to be covered in root locus, but I will move to design from the next class, design using root locus. तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टेड है इसमें आगे देखने के लिए this transient response design where again at this point nice में दिया हुआ टॉपिक और जनरलाइज्ड रूट लोकस है, और रूट लोकस फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, जो एक केक की बात करते हैं वो इस टॉपिक को देख सकते हैं, रूट लोकस फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स। तो इट्स वेरी सिंपल, एंड रूट लोकस की जो जनरल रूट लोकस है जिसमें हम पोल को भी चेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेन। तो 3 टॉपिक्स है पीछे, तो इसको आप देख सकते हैं, अगर आपको कुछ डिस्कस करना हो तो हम सेपरेटली कर सकते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड, अदरवाइज आई विल कीप इट अप टू हियर। Let's say the last point is actually this one to be discussed as part of the let's say curriculum, location of accurate points and the associated gains. So in this case now as a designer we could be asked, let's say I'll just move on to MATLAB plot again। अब ये हमारे पास रूट लोकस है, ये क्या है, ये हमारा बता रहा है कि हमारा सिस्टम जो है उसके पोल्स यहाँ हैं, उसके जीरोज यहाँ है ओपन लूप, और हम उसको गेन जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और गेन को चेंज करते करते हम कुछ लेवल पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे ये सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, और गेन को हम कुछ रख के ही सिस्टम को स्टेबल रख सकते हैं और मार्जिनली स्टेबल भी ले सकते हैं, ठीक है। इन सिस्टम में हमारा गेन जो है सपोज यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और सपोज 10 पर पहुंच रहा है, उसके बाद जो है अनस्टेबल हो रहा है, सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू भी देख लूँ, गेन हमारा 0.887 तक पहुंच रहा है, उसके बाद सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। कुछ सिस्टम्स में गेन जो है आफ्टर लेट्स से गेन शुड बी ग्रेटर देन समथिंग, यहाँ पर गेन शुड बी लेस देन 0.887 या 0.9 फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, इजंट इट? यस सर। तो अगर इसमें क्या आएगा आंसर, गेन शुड बी लेस देन लेट्स से 0.9 फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। लेकिन कुछ सिस्टम में आ सकता है गेन शुड बी ग्रेटर देन 1,
और 0.9 for the system to be stable. आप बता सकते हैं कि वो क्यों होगा? हाँ जी, आप में से कोई बताइए. We may have a situation where we could be kind of having this kind of the solution where we say that the gain has to be more than this thing for the system to be stable. If the gain is less than this, then the system is unstable. When can that be a case? Yes. बताइए तुफैल साहब, आप में से कोई बताइए. इस वाले सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि कुछ और सिस्टम्स के लिए जहां रूट कॉज कुछ और तरीके से होगा. हाँ जी, बताइए. सर वो वहाँ वहाँ होगा सर, अगर हमारे पोल्स राइट साइड आएंगे ना सर रियल एक्सिस पे, वहां से डिपार्चर स्टार्ट होगा हाँ, और अराइवल सर लेफ्ट साइड आएगा. एग्जैक्टली, उस टाइम हमारा के बेटर होना चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि फिर ही लेफ्ट रहेंगे पोल. सही. हाँ, तो we could have a case where the poles are already on the right hand side, and as we increase the gain, these poles start to move and they move towards the left half plane for a particular value of gain. So obviously, in that case, poles have started. So gain has been increased from 0 to something. Only after reaching to some level of gain, our poles will shift to the left side where it will be stable system. So in that case, we'll say gain has to be more than some value for the system to be Yes, stable. Clear? तो इस केस में अब एक और चीज है. एक तो हमें गेन का पता चल गया. अब इसमें ऐसा है कि हमारे पास इसमें समथिंग वी कॉल इट एज the design points. Suppose I will just mark another thing called as zeta here. Zeta आपको पता है क्या होता है? डैम्पिंग रेशियो. डैम्पिंग रेशियो. हाँ, तो यहाँ पर zeta को z से सपोज करेंगे हम डिफाइन, और एस ग्रेड एक कमांड है जिससे हम zeta प्लॉट भी कर सकते हैं इसके अंदर ना, डैम्पिंग रेशियो की लाइन. सपोज इट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस. ये दिख रहे हैं आपको ये लाइन? तो ये 0.5 डैम्पिंग रेशियो की लाइन है. आपको पता है जो इंक्लाइंड लाइंस होती हैं फ्रॉम दी ओरिजिन, वो क्या होती है? लाइंस ऑफ कांस्टेंट जीटा, लाइंस ऑफ कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो. यानी इस लाइन पे कहीं पे पॉइंट पे भी जीटा 0.5 होगा. और अगर आपको इनिशियल लेक्चर्स याद हैं तो इसका एक एंगल भी बनाता है रियल एक्सिस के साथ. अगर देखेंगे हम लेफ्ट साइड से थीटा बनाते हैं ना, वो भी अगेन एक्यूट एंगल वाला थीटा, वो वाला नहीं. तो हाँ, तो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू जीटा, इजंट इट? क्योंकि नीचे हमारा वो होता है जी ओमेगा एक्सिस का वो होता है और नीचे ये होता है. उसका अगर हम मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारा वो cos थीटा आएगा. So cos of this theta, this angle that it actually subtends with the horizontal axis from the left side will be equal to zeta. So cos of this is equal to zeta. ठीक है. अब मुझे सपोज कोई सिस्टम चाहिए. अब जीटा से क्या मिलता है मुझे? एंगल. Yes, sir. Zeta. So mine's time cos of theta. And mine's Anyways, we are going to consider the theta. I'm not sure. Let's say zeta is equal to cos of theta. मैं इसको चेक भी कर सकता हूँ. Anyways, ये बाद में चेक करेंगे, भी टाइम हमारे पास कम है. कहने का मकसद है अगर मेरे पास जीटा है तो थीटा भी निकाल सकता हूँ. ठीक है. लेकिन व्हाट डज जीटा टेल मी एक्चुअली? व्हाट इज जीटा? सर डैम्पिंग बताता है सिस्टम का रिस्पांस कैसा होगा. जीटा हमारा डैम्पिंग रेशियो. इससे क्या होगा? जीटा किसके? सर ln of percent overshoot आपको याद होगा square plus ln square percent over. Yes, sir. है ना? mine's time ऐसा pi कैसे? Root of pi square ln square ln square प्लस percent should be 100. गो मतलब गो जीटा वो अगर मतलब हमेशा कंट्रोल सिस्टम बनाओ का सिस्टम. ठीक है. इस सिस्टम का शुरू बनाओ कि आपके इस तक चला मिशन निकल जाता है जो आज वाइब्रेट कर
अगर ये ओवरशूट ये ज्यादा करूं क्या सपोज ओवरशूट कैसे सकता तुम सपोज नॉट जीटा मोर स्क्वायर दैट तो कर सकते हैं। क्या मतलब चलो मतलब ओवरशूट कैसे मतलब ओवरशूट कैसे 5% ज़्यादा दिखेगा ऐसा खतरा है ओवरशूट ज़्यादा को ये लिफ्ट ऐसा है कि करी 3 स्कोर स्टूडेंट स्कोर या टॉप फ्लोर स्पीड कर या ग्राउंड फ्लोर स्पीड कर आई विल रेस्ट्रिक्ट लेट्स से परसेंटेज ओवरशूट सिस्टम से तो हर पक्ष सिस्टम पैरामीटर्स जनरली चेंज करा क्या मैच करा जनरली तो जनरली चेंज करा कंट्रोलर क्या चेंज करा कंट्रोलर मतलब वो है गेन या बाकी चीज एमसी क्या जैसा कंट्रोल गेन चेंज कर सिस्टम में पोल से कैसा चेंज कैसा तो पोल जो चेंज गई सारी सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पांस स्टेबिलिटी गई चेंज we second पूरा system modify करें without changing the system we just modify the whole system by changing the controller which is actually gain in this case simple controller अश तमाम पढ़ने जाए कहाँ restriction designer ऐसा 20% ज़रूरत 10% से ज़रूरत 5% से ज़रूरत accordingly ये मतलब 20% या 10% accordingly इनमें हम लाइन अलग अलग है ना ये ना इस zeta 1 zeta 2 zeta 3 बना suppose 10% को 20% को 3% overshoot है ठीक वहीं चीज़ डिजाइन के मैं चीज़ में पोल उसमें वही देते तो ना इसके पोल में 0 रूट लोकस तक ना सपोज जितने वो करें इसकी रूट लोकस सपोज इसके ऊपर रूट लोकस वो बैठ एग्जैक्टली अगर मैं ये ओवरशूट से जरूरत ये पॉइंट से जरूरत में कि अगर मैं ये ओवरशूट से जरूरत सुना इसका मतलब मैं किसी भी ओवरशूट के लिए डिजाइन कर सकता हूँ अपने सिस्टम को मैं अगर चाहूंगा कि मेरा ओवरशूट 10% होना चाहिए इसका मतलब मेरा गेन जो है और मेरा जो सॉरी ओवरशूट 10% होना चाहिए तो मैं यहाँ पे गेन निकाल सकता हूँ ना सारी पढ़ने को ना गेन थ्रेड के जी एस एच एस सी है कि ना यानी हम वो पॉइंट ढूंढ सकते हैं इसी तरह ये इस पॉइंट पे अगर मुझे चाहिए नहीं ओवरशूट मैं चाहूंगा नहीं ओवरशूट मेरा बढ़ना चाहिए इससे क्या होगा मैं ओवरशूट चेंज करूँ यहाँ पे करूँ ये ओवरशूट होना चाहिए ये तो मैं कहूँगा ओवरशूट में पॉसिबल ही नहीं होगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सेटलिंग टाइम होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ राइज टाइम होगा यहाँ पे दिस इज हाउ आई एक्चुअली प्ले विद द सिस्टम्स आई कैन एक्चुअली प्ले और ट्रेड ऑफ चलो मैं अगर गेन मुझे ओवरशूट कम चाहिए लेकिन उससे मेरा सेटलिंग टाइम सब बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है या पीक टाइम से चेंज हो रहा है मेरा इसके बीच में फर्क है आपस में है कि नहीं so this is how designers actually work after all learning all these tools so in all these cases wherever we are at these points we search for a given line for a given point yielding summation of angles equal to the multiple of 180 because they have to be equal to 180 degrees at any point okay and gain is always found by multiplying the pole lengths drawn to that point and dividing by the product of zero lengths drawn to that point so we'll see this maybe just by a simple example which I had already drawn done so ये हमने अभी किया ये प्रॉब्लम पूरी कंप्लीट की हमने ये जो मैंने अभी आपको दिखाई एक एक करके ये वाली ठीक है इसका हमने जी ओमेगा भी ढूंढा इसका हमने रूट लोकस भी थोड़ा स्केच करने की कोशिश की गेन भी ढूंढा ब्रेक इन पॉइंट्स लेकिन आप इसमें एक पॉइंट देखेंगे हमने अभी सॉल्व नहीं जो किया फाइंड द पॉइंट वेयर द रूट लोकस क्रॉसेस 0.5 डैम्पिंग रेशियो लाइन ठीक है 0.5 डैम्पिंग रेशियो मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मतलब ना ओवरशूट के लिए बताइए क्या होना चाहिए उस पर गेन क्या होना चाहिए फाइंड द गेन एट दैट पॉइंट स्टेबिलिटी तो हमें पता है कैसे निकालेंगे लेकिन ये दो हमें अभी किया नहीं था हमें पॉइंट वो ढूंढना है जहां पर ये इसको क्रॉस करेगा और उस पॉइंट पे गेन क्या होना चाहिए तभी हम सिस्टम कहेंगे जी इस गेन पे आप इसको रखिए तब ये उससे ज्यादा ओवरशूट नहीं करेगा तो हम उसको डिजाइन कर पा रहे हैं इसको करने के लिए हम क्या करते हैं हम 0.5 पे जीटा 0.5 डैम्पिंग रेशियो जो लाइन है उसको हम cos के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे 60 डिग्री cos में समान आएगा थीटा आएगा हमारा 60 डिग्री तो हम एक लाइन 60 डिग्री पे डाल के स्ट्रेट लाइन ऐसे डाल सकते हैं ये हमारा पॉइंट था जो हमारा रूट लोकस का आया था इसी सिस्टम का ठीक है तो ये लाइन एक ट्रैवल करेगी समझ ऐसे 20 डिग्री पे निकला था ना ये सपोज इस तरह तो हमें ये पॉइंट ढूंढना है ये वाला पॉइंट ठीक है ये वाला पॉइंट कैसे ढूंढेंगे क्योंकि ये पॉइंट रूट लोकस पे होना चाहिए तो ये अगर रूट लोकस पे होना चाहिए तो इस पॉइंट तक अगर सारे एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री होने चाहिए और जो ये पॉइंट हमें मिलेगा उस पॉइंट पे हमें फिर ऑल लेंथ और जीरो लेंथ से डिवाइड करके हमें कैपिटल के मिल जाएगा ठीक है
तो इसको मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये लेकिन हम हाथ से थोड़ा सा मुश्किल है ये करना, इसको हम मैटलैब से कर सकते हैं सॉल्व। गेट दिस एज the pole location and gain, we can calculate this. इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगी आपको एज ए लेट्स से डिजाइनर, तब तक मैं जब तक कुछ आपको ऐसे कहूँ जबानी, तब तक आप इसको नोट कीजिए, इस प्रॉब्लम को आप करेंगे। इसमें सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। दिस इज व्हाट फिनिशेस आर लेट्स से रूट लोकस फॉर द टाइम बीइंग। We'll talk about design in the next class. Designing, competitor controllers with root locus, PID controller, cascade, and what we call as compensation and lead lag compensations. तो इसमें हमें एक क्वेश्चन हो सकता है जो आप पूछ सकते हैं हमें कि अगर हम जीटा इज इक्वल टू कुछ है 0.5 है, उस पर हमने लाइन डाल दी, पॉइंट ढूंढना है, उस पॉइंट तक एंगल्स कैसे हम डालेंगे? हम एंगल्स तो इजीली डाल सकते हैं, लेकिन उस पॉइंट पे एंगल हम कैसे पता कर सकेंगे? हमें पॉइंट नहीं पता ना, वो समझ में आ रहा है? सर आप रिपीट करो थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ अभी जो हमने क्वेश्चन देखा ना, ये वाला, ये पॉइंट जो है जीटा इज इक्वल टू 0.5 जो है, ये लाइन है बेसिकली, है ना। इस लाइन पे ये पॉइंट हमें ढूंढना है। अब ये पॉइंट तो रूट लोकस पे होना चाहिए, तो रूट लोकस पे होना चाहिए, इसका मतलब उसका समेशन ऑफ एंगल्स हैज टू बी ऑड मल्टीपल ऑफ 180 and also the magnitude has to be of k has to be product of pole length and product of zero length at this point. लेकिन ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट itself एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z is equal point, zeta is equal point होते लाइन है, लेकिन ये पॉइंट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, कोई उसका कुछ रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। तो वो कैसे हम ढूंढेंगे? क्योंकि अगर हमें वो मिल गया वो पॉइंट, तो उस पॉइंट तक हम बाकी वेक्टर्स डाल सकते हैं और एंगल्स भी ढूंढ सकते हैं और मैग्नीट्यूड भी ढूंढ सकते हैं। तो आंसर तो मिल गया हमें, जो हमने यहाँ पे किया है। समेशन ऑफ जीरोस टू पोल्स इज दिस यूजिंग मैटलैब। आई एम सेइंग यूजिंग मैटलैब। तो ये क्वेश्चन आपको रेज होना चाहिए, मैटलैब क्या कह रहे हैं। बाकी ये इवेलुएट करना आसान है, ये भी इवेलुएट करना फिर आसान है, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैसे मिलेगा हमें? क्योंकि ये पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे रूट लोकस क्रॉस करेगा 0.5 डैम्पिंग रेशियो को। जरा आप में से आप बताइए मुझे, कौन कौन बता सकता है इसका आंसर? हाँ जी बताइए। हाँ जी, कोई आप में से बताइए। जाहिद। सर जाहिद 2 है। जमीर। यस सर। कोई सब भी बोल दो। फैजान। सर थीटा मिलता है ना सर हमें डायरेक्ट, हम नई लाइन ड्रा कर सकते हैं ओरिजिन से, तो सर ये तो डायरेक्ट थीटा मिलेगा, तो मिल गया फिर हमें, जहां पर क्रॉस करेगा वहां पर हमारा होगा, फिर हम टेस्ट कर सकते हैं ये, फिर ये वो वाला पॉइंट सेटिस्फाई करता है। देखो देखो एंगल आपको पता है लाइन का, लेकिन लाइन की लेंथ का आपको पता है। कट निकाल सकते हैं ना सर, ये है ना ये ना ये पाइथागोरस से निकाल सकते हैं ना सीधे। सर वो बेस हाइपोटेनस सर वो हम ड्रा करेंगे ना सीधे सर, लाइन करेंगे यहाँ से ड्रा सीधे, ये जहाँ पे काट करे सर ग्राफ से सीधे निकल सकता है, ग्राफ यूज ना करो, पॉइंट से लाइन कर सकते। एग्जैक्टली। या तो आपको ग्राफ पीक टाइम और करना सेटलिंग है टाइम यूज। देखेंगे तो वहां पे हमें पता चल सकता है ना कि हमारा हॉरिजॉन्टल से कितना दूर है और वर्टिकल कितना दूर है। ये यस सर। कौन सा ये वाला पॉइंट कर सकते हैं, वैसे भी देखना पड़ेगा। देखो एक तरीका तो यह है कि मैटलैब आपके सामने हो सपोज, और डायरेक्ट आपने रूटों को स्वाप बनाया हो और आप फिर उस पॉइंट को देखेंगे इस तरह। ये पॉइंट को आपको देखना है ना, ये पॉइंट है ना वो। यस सर। ठीक है तो फिर यस सर तस्दीक वगैरह जब लगभग ये पॉइंट है वो 2.41 और 4.178 है, जो भी है ये पॉइंट है हमारा जो हमें ढूंढना है। ये हम इजीली कर सकते हैं ग्राफ से भी।
अगर हमने ये चीज ग्राफ पे बनाई और हमने इक्वल डिस्टेंसेस पे लिया कौन सा ना रूट्स वगैरह को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, तो जहाँ ये क्रॉस करेगी वो हमें मिल जाएगा डायरेक्टली ग्राफ से। तो इनफैक्ट ग्राफ से बनाना ही इसमें आपके लिए एग्जाम में मुनासिब होगा। अदरवाइज इसमें आप रूट लोकस में मैटलैब से कर सकते हैं। और तीसरी सबसे दूसरी जो टेक्निक है इटरेटिव टेक्निक, आप ये लेंथ कुछ ले सकते हैं इनिशियली, ठीक है। इस लेंथ को आप कुछ लेकर उससे वैल्यूज निकाल कर एक एक करके आप इवेलुएट कर सकते हैं। सो दैट इज मोर ऑफ एन इटरेटिव प्रोग्राम, बट आई थिंक the graph one is much easier. It may not give you exact value, but approximately it may give you a better value, क्योंकि आपका ग्राफ जितना बेसिकली होगा ना, जितना आपने ग्राफ बनाया होगा ठीक से, मतलब ना जितना उसकी रेजोल्यूशन आपने अच्छा रहा होगा, उसी हिसाब से आपको टू द डेसिमल प्लेसेस वैल्यू अच्छे मिलेंगे। सर ये डिपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर हम सिर्फ इसके लिए निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए, रियल ना ना, ना सर नहीं, पोल्स के लिए भी रियल, उसके लिए भी, उसके लिए तो अराइवल आएगा, रियल के लिए 90 आएगा, उसको आप इवेलुएट कर सकते हैं रियल के लिए। तो मैंने कहीं देखा था वो, इट कम्स आउट टू बी इवन 90 इफ यू कैन इवेलुएट इट। देखिए अभी अगर आप देखेंगे जीरोस कोई जहाँ ये ना अराइवल हो रहा है, वहाँ डिपार्चर सीधे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना रियल एक्सिस पे, अगर पोल जीरोस हो गया, रियल एक्सिस पे हो गया अगर पोल्स ठीक, मगर डिपार्चर मा जरूरी जीरो आज बना तो इस ना वो केस उस मुद्दे हम सुधराव एजिम्टोट्स तत मा द्राव जीरो या स्ट्रेट लाइंस तत द्राव ना थोड़ा गोड 90 पद फिर दशिन की, ठीक सर याद आवा। तो इसमें आप अगर सिंपली अभी देखेंगे ना जीरोस यहाँ पर है ना, ये मेरा इस वक्त कर्सर है, तो कर्सर पे जो है अगर मैं लाइंस ड्रॉ करूँ यहाँ से एक पोल से दूसरे पोल से, ठीक है, आवाज समझ ना, यम पेट अगर लाइन ड्रॉ करें, यम पेट वेक्टर ड्रॉ करें, पत करें यम पेट ये मगर ऐड कर रख, ठीक है। यस सर, इसको आप देख सकते हो, इट शुड कम आउट टू बी 90, ठीक है। सर कौन सा वाला लगेगा, नेक्स्ट टाइम बता सकता हूँ। शुड टर्न मतलब ना ये जो लाइन ये जो यहाँ आ रही है ना इस तरह, अराइवल का एंगल विद रिस्पेक्ट टू दिस रियल एक्सिस का जो ना पॉजिटिव साइड और रियल एक्सिस शुड कम टू बी 90 डिग्रीज। एंड उसके लिए भी हम थोड़ा सा कोई पॉइंट ढूंढ सकते हैं, या इनफैक्ट ये ब्रेक इन पॉइंट पे ही देख सकते हैं। एक वेक्टर यहाँ से डालेंगे, एक वेक्टर यहाँ से डालेंगे, एक वेक्टर यहाँ से, एक वेक्टर यहाँ से, चारों का हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। It should come out to be 90 degrees. Though we generally use this concept of arrival and departure, जो हम निकालते हैं, ये हम small excursions about this pole और zero है ना, वो करते हैं उसके लिए। लेकिन ये मुझे लगता है easily you can find it out. It should be 90, and for departure also it will leave at 90 first, then it can turn into asymptotes or it can be a straight line directly. ठीक है। ये प्रॉब्लम आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सो वी कैन ट्राई दीज प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमारा टेक अवे यही है कि हम रूट लोकस से बेसिकली हायर ऑर्डर सिस्टम्स जो हमारे होते हैं उनको हम डायरेक्टली ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं फिर से, बिकॉज दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ रूट लोकस, मे बी दिस पार्ट, इसलिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ कि जो हमने डैम्पिंग रेशियो की जो फॉर्मूला लिखी ना अभी, या जो हम इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, मतलब ना कोई भी थिंग लाइक जो अभी हमने बात की डिज़ाइन की, डैम्पिंग रेशियो ये है, इसका सेटलिंग टाइम ये है वगैरह वो है, ये सारी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस की है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो रूट लोकस तो हम कह रहे हैं फोर्थ ऑर्डर फिफ्थ ऑर्डर कोई भी ऑर्डर हम कर सकते हैं, वो इसका पावर है। लेकिन यहाँ से हमने जो सेटलिंग टाइम या इस तरह की चीज़ें की ना डिस्कस, या लाइंस ऑफ कांस्टेंट सेटलिंग टाइम या डैम्पिंग रेशियो, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिफाइंड फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। The question could be raised कि if this is for second order system, how can we use them for higher order systems? So you can probably look at a topic called as
higher order poles and higher order zeros में होता क्या है. So what happens is actually we have something called as pole zero cancellation. We have something called as dominant poles. So with all those approximations, actually we can basically approximate sometimes higher order systems with the second order systems. So that's why we can use these parameters of second order systems for even higher order systems. And we generally evaluate something called as the validity of those assumptions. Okay. For some systems, we do have a valid, higher order approximations, but for others, we may not really have the approximations to be correct. Okay. But I think I'll leave it for only for those who are interested actually into this, not for everyone. If you want my help, I can actually assist you there. But for maybe others, I will kind of skip this part just to avoid kind of. I would probably consider this to be too much for those students who may take more time actually in understanding the things. So that's why I will keep it up to that. But that you can study. That's very interesting. You can go for that part. Okay, I think that's it for today. But I'm actually looking for a quick test for you. But I think before that, I'm more interested actually into looking at the other aspects called as feedback. So I had already asked some of you to give me a feedback of the FEM course. I'd sent that to the CR, but I haven't received I think any one from you. लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा आज आप अभी जो आपके पास 10-15 मिनट है आपको 2 मिनट लगेंगे फीडबैक भरने में. आप उसमें फीडबैक दे दीजिए और उसमें फीडबैक में इंपॉर्टेंट रहता है हमारा सबसे ज़्यादा वो लास्ट वाला कॉलम रहता है जहाँ पर हम आपसे कमेंट्स मांगते हैं. तो आपको जो भी पॉइंट लगता है कि आप पॉइंट मार्क करना चाहेंगे उस कोर्स के बारे में उस टीचर के बारे में obviously it should help us rather than just criticizing. So we would take it positive and we'll try to improve there. So I would request you all to fill up this feedback in just maybe these 15 minutes आपके पास हैं. By 11:30 I should have feedback of these FEM from all these I think 44 जितने भी students इस वक्त ऑनलाइन हैं इन सब से. ठीक है. और मुझे लगता है क्योंकि आज हमारा थोड़ा एक्सटेंड हुआ टेस्ट को मैं डेफर करता हूँ. मे बी ऑन द वेडनेसडे वी कैन हैव दिस टेस्ट. ठीक है. So I will probably skip the test today. On Monday or Wednesday, I can give you a small test. It could be just 5-10 minutes. And I will ask you to solve one question. You'll have to give me the answer for that. Okay. So please complete the feedback within these 10-15 minutes. I am actually I'm monitoring it myself, and not let's say any other faculty member. You may see my screen also. So online FEM is yet to probably be filled up. So this is for autumn 2020, and then I have 7th semester feedback, midterm, and this is the online FEM. Online means we are actually considering this to be through online mode. So responses are almost, I would say, 0. So you may be looking at the screen. दिख रहा है आप लोग? हाँ तो प्लीज आप इस 10-15 मिनट में फीडबैक भर लीजिए. आई वांट यू ऑल टू फिल अप द फीडबैक. वी हैव सम प्रोसेस टू बी फॉलो. प्लीज डोंट डिले इट. सर हमें मिला ही नहीं सर, अदरवाइज हमने भरा होता. हाँ जी हमें लिंक. यस सर. हाँ जी क्या नाम है? मोहम्मद उमर. सर मैंने एक बार लिंक फॉरवर्ड की थी, मैंने चेक नहीं किया, मैंने फिर से सेंड किया. सर एफईएम की लिंक नहीं थी सर, वो एग्जाम्स पे आती थी हमें सर, बट इसका एग्जाम ही मत हुआ सर. वो एग्जाम के दौरान ही हमें आती थी उसी टाइम लिंक सर. इसका एग्जाम. अच्छा सुनो, एक काम करो, मैं एक काम करूंगा अब नेक्स्ट टाइम से मैं ये आपको लिंक्स भेजूंगा क्लासरूम में. ठीक है. उसमें आप डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. और इसके अलावा आपको पिछला जो सेमेस्टर हुआ ना आपका, हाँ सर, पिछला सेमेस्टर जो हुआ उसके अंदर आपका जो एंटर्म हुआ उसका भी लिंक मैं भेजूंगा. ठीक है. क्लासरूम में ही. हाँ तो वो भी कर लीजिए. मैं फिर भी भेजता हूँ, जिसने नहीं किया वो कर लेंगे, लेकिन इसी 15 मिनट में ये करेंगे आप प्लीज. हाँ चलिए, थैंक यू.